So hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss about exponential distribution. Okay, so without further ado, let's jump straight into the topic. Now, क्या होता है exponential distribution? See, exponential distribution is a continuous probability distribution. Note it. It is a continuous probability distribution used to model the time between events in a process where events happen randomly and independently at a constant average rate. Okay, and there should be no overlapping events. Okay, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम लोग को इवेंट दो सक्सेसिव इवेंट के बीच का वेटिंग टाइम हमारा इंटरेस्ट हो फाइंड आउट करना, उन एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट में इवेंट जो होता है वो रैंडमली हैपन हो रहा है और इंडिपेंडेंटली हो रहा है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इवेंट हैपनिंग रैंडमली? इवेंट हैपनिंग रैंडमली का मतलब है द इवेंट्स ऑकर इन ए वे वेर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन द नेक्स्ट वन विल ऑकर. ठीक है, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ओके दिस इज द एट दिस इंस्टेंट इवेंट विल हैपन. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम इवेंट हैपनिंग रैंडमली. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट हैपनिंग इंडिपेंडेंटली? Event happening independently means if an event has happened now, then it will not affect the probability of the event happening in the next instant. मतलब एक इवेंट अगर हुआ है तो वो नेक्स्ट इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है. तब हम बोलेंगे कि इवेंट आर हैपनिंग इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट एवरेज रेट. दैट मीन्स इन ए fixed interval of time, the average rate of the event happening is constant. We know that okay, in one day 5 accidents will happen, but we don't know for sure at which instant that accident is happening, that accident will happen. Okay, so this is mean by constant average rate and there is no overlapping events. मतलब एक साथ दो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, एक साथ दो एक्सीडेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, एक साथ दो कस्टमर नहीं आ रहा है कोई भी शॉप में. ओके, कूल. नाउ रिकॉल दैट इन Poisson distribution counts how many events happen in a time interval. Okay, but here in exponential distribution it tells us how long we will wait until the next event happens. ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही ना देखे थे, हम लोग का इंटरेस्ट यही था ना कि एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हाउ मेनी नंबर ऑफ इवेंट्स विल हैपन. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. बट हेयर इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वी आर फाइंडिंग व्हाट इज द इंटर अराइवल टाइम. That is, what is the time between two successive events? One event has happened, now how much time we have to wait for the next event to happen. This is the area of interest in exponential distribution. Okay, now when do we use exponential distribution? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब हम लोग यूज़ करते हैं? सी वी यूज़ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी आर मेजरिंग वेटिंग टाइम. ओके, सच एज टाइम अंटिल ए बस अराइव्स. एक बस आया, अब दूसरे बस आने का के बीच का वेटिंग टाइम. टाइम बिटवीन फ़ोन कॉल्स एट ए कॉल सेंटर. एक कॉल आया कॉल सेंटर में, अब नेक्स्ट कॉल आने के बीच का वेटिंग टाइम. टाइम अंटिल ए मशीन पार्ट फेल्स. एक मशीन पार्ट फेल हुआ, उसको हम लोग रिप्लेस किए विथ अ न्यू पार्ट. Now what will be the what will be the time until this part will fail. ठीक है, टाइम टू नेक्स्ट कस्टमर एंटरिंग ए शॉप. एक कस्टमर आया हमारे शॉप में, अब what will be the time that the next customer will enter in our shop. Okay, so basically waiting time, specifically talking exponential distribution is concerned about the waiting time between two events in an experiment. Okay, cool. Now let's look at the notation.
x, the random variable x follows exponential distribution, where lambda is the average rate. ठीक है, where lambda is the average rate, average rate, okay, average rate, that is average number of events per unit of time, average number of events per unit time. Okay, and x is the random variable which represents the waiting time. Okay, अब random variable का we have seen. If you have any doubt in random variable, you can look into the video on random variable. ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी के प्लेलिस्ट में रैंडम वेरिएबल करके एक वीडियो है, यू कैन सी दैट. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका देखते हैं. क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इट्स गोइंग टू हैव ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. ठीक है, वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, this probability density function tells us how likely different waiting times are. Okay, now here small x is a possible value of random variable x, where x represents waiting time. मतलब x एक specific value होगा from the random variable x. मतलब अगर हमको let's say find out करना है, okay, what is the probability that our waiting time will be 2 minutes. So we will plug in x is equals to 2 minutes, small x is equals to 2 minutes. Okay, if we want to find out what will be the probability that our waiting time will be 10 minutes, so we will plug in x is equals to 10 minutes, small x is equals to 10 minutes. Cool. Okay, now let's look at the shape of the distribution. Shape of this exponential distribution. Okay, now it is always right skewed, always right skewed. ठीक है, always right skewed. It is highest at x is equals to 0 and gradually decreases as x increases. x जो जो बढ़ते रहेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी भी घटते रहेगा. ठीक है, अब लेट्स लुक एट द ग्राफ. ओके, दिस रिप्रेजेंट्स x, this is fx. ठीक है, and this is the curve of fx equals to lambda e to the power minus lambda x. ठीक है, and area under the curve will give us the probability. ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग को पता है कि एरिया अंडर द कर्व will give us the probability. Cool. Now let's take an example and solve it. Okay, so that our concept will become more crystal clear. ठीक है, now consider this example. हम लोग एक बस स्टॉप में खड़े हैं. ठीक है, हम लोग एक बस स्टॉप में हैं एंड वी नो फ्रॉम पास्ट डाटा दैट बसेस अराइव्स ऑन एन एवरेज ऑफ एवरी 10 मिनट्स. मतलब दो बस के बीच में ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स का गैप रहता है. ठीक है, so we expect about 10 minutes between two bus. This is our expectation, but reality varies. Okay, why reality varies? Because of randomness. ठीक है, we don't know exactly when the next bus will arrive because it is random, but we do know the average. What is the average? That buses arrive on an average of every 10 minutes. मतलब 10 मिनट में
10 मिनट में एक बस आता है, तो 1 आवर में कितना बस आएगा? 6 बस। ठीक है, बेसिक 10th क्लास का मैथ्स है, हम लोग बता ही देते हैं। 10 मिनट में 10/60 आवर में 10 मिनट में एक बस आ रहा है, 1 मिनट में 1/10 बस आएगा। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना बस आएगा? 60/10 बस, मतलब 6 बस। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, सो 1 आवर में 6 बस, सो 6 बस 6, so average rate of arrival of buses 6 buses per hour. This will be our average rate. ठीक है, now what exponential distribution answers? इस जो ये एग्जांपल है इसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आंसर करता है? व्हाट हाउ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स अस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो it answers exponential distribution answers question like how likely is it that the bus arrives in 10 minutes। ठीक है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। हाउ लाइकली इज इट दैट आई विल वेट मोर देन 5 मिनट्स, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कितना होगा। ठीक है, क्या इज़ वेटिंग लॉन्गर अनयूजुअल, क्या ज़्यादा वेट करना अनयूजुअल है कि कम वेट करना अनयूजुअल है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका देखो, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा? लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स 6 टू द पावर माइनस 6x। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट बस comes within t hours। ओके, t कैन बी एनीथिंग, t इज़ ए वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट बस है इस विद इन मतलब टी आवर्स के बीच में आ जाएगा, मतलब जीरो, मतलब जब से हम शुरू किए वेटिंग करना तब से लेकर के अप टू टी आवर्स तक आ जाएगा। लेट्स से टी इज़ 1 आवर, मतलब 0 to 1 आवर के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस आ जाएगा। लेट्स से टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो 0 to 30 मिनट्स के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा रैंडम, यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो क्या होगा? 0 to t आवर्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 to t आवर्स में आ जाएगा हम लोग का बस? यही ना है। ठीक है, मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये ग्राफ, ठीक है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है, मतलब ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो है, ये लेट्स से टी आवर है। मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि बस 0 to t आवर्स में विद इन टी आवर्स में आ जाएगा, मतलब 0 to t आवर्स के बीच में बस आ जाएगा। तो हम लोग ये एरिया जो ये शेडेड एरिया है यही हम निकाल रहे हैं ना, ये शेडेड एरिया हम निकालेंगे तो मेरे को प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये शेडेड एरिया? दिस कर्व हैज़ ए दिस कर्व एज एन इक्वेशन ऑफ लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। मतलब अगर हम इंटीग्रल 0 to t एफ एक्स डी एक्स कर दिए तो मेरे को एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। कर दो इंटीग्रेशन 0 to t लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाई माइनस लैम्डा टी टू 0, मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्लस e टू द पावर 0, मतलब 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मतलब प्रोबेबिलिटी कि बस इज़ गोइंग टू अराइव विद इन टी आवर्स
इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन, what is the probability that we have to wait for more than t hours? What is the probability that bus will come after t hours? टी आवर्स के बाद बस आएगा, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब एक्स जो है वो क्या होगा, मतलब अराइवल, जो बस का अराइवल है वो टी आवर्स के बाद हो, मतलब टी आवर्स टू टी आवर्स से लेकर कितना तक, टी आवर्स से लेकर के कोई भी समय हो सकता है, टी आवर्स के बाद कोई भी समय हो सकता है जब बस आए। अगर हम बोल रहे हैं कि टी आवर्स के बाद बस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि t+1 आवर्स हो सकता है, t+2 आवर्स हो सकता है, t+5 आवर्स हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम कर्व में देखेंगे ना, अगर हम बोल रहे हैं ना कि बस जो है वो टी आवर्स के बाद आएगा, मतलब ये एरिया, अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि टी आवर्स के बाद आएगा तो टी आवर्स टू इन्फिनिटी आवर्स तक आ सकता है। ठीक है, यही हो रहा है। मतलब हम अगर बोलते हैं तुमको कि बस 5 घंटा के बाद आएगा, ठीक है, 5 घंटा के बाद कब आएगा, 5 घंटा के बाद क्या 6 घंटा में आएगा, क्या 7 घंटा में आएगा, क्या 1 दिन बाद आएगा, क्या 2 दिन बाद आएगा, वो तो नहीं बता रहे ना, हम बस ये बोल रहे कि 5 घंटा के बाद आएगा, मतलब 5 घंटा के बाद अनंत काल तक आ सकता है। ठीक है, और अनंत काल इज़ नॉट डिफाइंड एंड विच इज़ नॉट डिफाइंड इज टेकन इज इन्फिनिटी इन मैथ्स। ठीक है, हम मतलब नहीं स्पेसिफिकली बोल पा रहे हैं कि 5 घंटा के बाद कब आएगा, तो हम ले लिए कि ठीक है 5 घंटा के बाद 5 घंटा से इन्फिनिटी टाइम तक आएगा बस। ठीक है, सो दिस इज़ 5 टू इन्फिनिटी। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस ये एरिया अंडर द कर्व हम निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगा, मतलब दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 5 टू इन्फिनिटी लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, मतलब लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा इन्फिनिटी टू 5, टी ले लो। ठीक है, टी ले लो टी आवर्स। ठीक है, माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो इसको, ये वैल्यू को देखना है ना, ये वैल्यू को, ई टू पावर माइनस लैम्डा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 ई टू पावर लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, 1/λ into infinity is infinity and something to the power infinity is also infinity and 1/infinity is 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि बस टी आवर्स के बाद आएगा, मतलब बस टी आवर्स से लेकर के इन्फिनिटी टाइम तक के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, ओके, so this is it for today, and in the next video we are going to continue this exponential distribution, and we are going to understand one very important property of exponential distribution, which is memoryless property. ठीक है, so yeah, if you have any doubt you can leave a comment and we will meet in the next video. So yeah, thank you.